Hello students, how are you all? I hope that you all are fine at homes and studying well for your annual examinations. So, beginning up with very new topic in English grammar, I'm going to start with a new chapter, and the name of the chapter is Subject Verb Agreement. It is actually a combination of two words, that is subject as well as the verb, and let's see that whether the subject and the verb agrees with each other or not. So let's see first of all that what actually this word subject verb agreement means. So subject verb agreement means that both the subject and verb must match or agree in number. Okay, so in this the word subject as well as the verb both should be matching with each other, matching or agreeing with each other in number. Okay, so this number can be in the form of singular or plural. Okay, so if we are using in any of the sentence, if we are using that the subject is in the singular form, or okay, so the verb will also be in the singular form, and if the subject is in the plural form, the verb will also be in the plural form. So we have always been known as that subject is in singular, so verb will also be in singular form. Okay, then the second, if subject is in plural, so verb will also be in the plural form. Okay, so after this I will be moving on to the different examples of both singular as well as plural. Okay, I hope आपको ये इतना समझ में आ गया होगा. Okay students, so previously I have already explained you that if we are using a singular subject, then there must be always a use of the singular verb. So let's see the example. The dog barks at every sound he hears. तो dog यहाँ पे क्या है हमारा singular subject है, ठीक है. लेकिन बार्क्स जो है, क्योंकि अगर हमने सिंगुलर यूज किया हुआ है तो हम बार्क नहीं बोलेंगे, हम उसमें एस लगा देंगे कि भौंकता है. ठीक है, तो दिस विल बी एज सिंगुलर वर्ब. ठीक है, बट कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा यूज होगा किसका, प्लूरल वर्ब का. फॉर एग्जाम्पल द डॉग्स बार्क. अब डॉग्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट. अगर हमने डॉग्स का यूज किया है तो हम इसके साथ बार्क लगाएंगे. सो दिस विल बी एज यहाँ पे प्लूरल वर्ब. बट सी द डॉग्स बार्क एट एवरी साउंड दे हियर. अब दे भी क्या हो गया, हमने सेंटेंस की डिमांड के हिसाब से प्लूरल, इसको प्लूरल बना दिया. पहले वाले सेंटेंस में द डॉग बार्क्स एट एवरी साउंड ही हियर्स, यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में था. ठीक है, इतना समझ में आया. आफ्टर दिस आई विल बी मूविंग ऑन विद द डिफरेंट रूल्स दैट आर यूज्ड फॉर changing of the sentences into the subject verb agreement. What are the demands of the subject verb agreement accordingly? So we'll be discussing the rules one by one after this. Okay, so let's begin up with the rules of the subject and the verb agreement. You have already known the very first two rules. That is, if the subject is in the singular form, the verb will also be in the singular form. And the second one, if the subject is in the plural form, verb will also be in the plural form as well. So both the
points. Both the rules I have already discussed with you earlier. So now let's moving on with the very important rule, that is the third one. When the subject of the sentence is composed, जब भी किसी भी sentence में एक subject को लगाया जाता है, it can have 2 or more nouns. उसमें 2 या 2 से ज़्यादा nouns या फिर pronouns हो सकते हैं. And ठीक है, उसके बाद what they are connected with, they are connected with this word and use a plural verb. ठीक है, जब हम इसमें भी हम प्लूरल का ही यूज़ करते हैं. अगर 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं एक सब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो क्या होता है, और दोनों का जो भी कनेक्शन होता है, हम दोनों सेंटेंसेस को जब जोड़ते हैं विद दिस वर्ड एंड, तो वहाँ पे जो भी हम वर्ब का यूज़ करेंगे दैट विल बी इन द प्लूरल फॉर्म. ओके, फॉर एग्जाम्पल the doctoral student and the committee members. ठीक है, doctoral student ये भी एक noun है, committee members ये भी noun है. इन दोनों sentences को जब जोड़ा गया है with the word and, write every day, तो यहाँ पे जो word write का यूज़ किया है हमने, that also becomes into the plural form. ठीक है, हम यहाँ पे s नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे simply write लिखेंगे. ठीक है, हम कभी भी जैसे फर्स्ट सेंटेंस में या फर्स्ट रूल में आप देखेंगे एग्जाम्पल में, अगर हमने she सिंगुलर है तो writes किया हुआ है, s लगाया हुआ है. लेकिन अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमने s नहीं लगाया हुआ, एस है ही नहीं. ठीक है, उसी तरीके से थर्ड वाले रूल में जब हमने 2 नाउन्स को एक दूसरे में जोड़ा है, एक दूसरे के साथ ऐड किया है एंड लगा के, तो यहाँ पे जो ये राइट वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वो भी प्लूरल में ही रहेगा, चाहे हम एस लगाएं या फिर ना लगाएं. ठीक है, इतना समझ में आया. देयर आर एक्चुअली 12 रूल्स इन दिस. ठीक है, देयर आर 12 different rules. We have already discussed 3 rules. After this I will be moving on with the more rules with you all to be discussed. Okay students, so let's move on with the fourth rule. When there is one subject and more than one verb. ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट है और एक से ज़्यादा verbs हैं, तो क्या होता है कि the verbs थ्रू आउट द सेंटेंस, जितने भी वर्ब्स जो होते हैं जो पूरे सेंटेंस में, ठीक है, पूरे सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट. तो इन वर्ब्स का जो भी हमने एक सेंटेंस में कंपोज करते वक्त, सेंटेंस बनाते वक्त यूज़ किया होता है, तो वो जो है वो इस सब्जेक्ट के साथ एग्री करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूज़ क्या है, हमारा सब्जेक्ट है. आर one way to collect data and allow research to gain an in-depth understanding of participants. ठीक है, इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो एक तरीका होता है हमारा डेटा कलेक्ट करने का, लोगों के बारे में जानने का, और जो भी रिसर्चर्स होते हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, उन लोगों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उनको अलाउ करता है किस चीज़ के लिए, ताकि वो उनकी जो डीप नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है पार्टिसिपेंट्स की, जिन्होंने इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया है, उनके बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है किसका, इंटरव्यूज़ का. तो इंटरव्यूज़ हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और आज हमारा यहाँ पे वर्ब है. ठीक है, उसके बाद लेट्स मूव ऑन विद द फिफ्थ रूल. व्हेन अ फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. जब कोई एक फ्रेज जो है, ठीक है, वो सब्जेक्ट या फिर वर्ब के बीच में आता है, हमेशा याद रखना चाहिए दैट द वर्ब स्टिल एग्रीज. इसका मतलब ये है कि जो वर्ब यूज़ किया है हमने सेंटेंस में, वो अभी भी सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, जुड़ा हुआ है, नॉट द नाउन और द प्रोनाउन, ना कि नाउन और प्रोनाउन के साथ इन द फ्रेज फॉलोइंग द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. जो भी फ्रेज का हमने सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वर्ब हमारा एग्री करता है सब्जेक्ट के साथ, ना कि नाउन और प्रोनाउन के साथ, क्योंकि उस फ्रेज का यूज़ जो है सब्जेक्ट के तौर पे एक सेंटेंस में किया होता है. फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट है,
as well as the committee members is excited is हमारा वर्ब है, ठीक है। दोनों यहाँ पे भी सब्जेक्ट है और कमिटी मेंबर्स भी हमारे सब्जेक्ट के तौर पे ही हैं, ठीक है। तो हमने ये जो फ्रेज का यूज़ किया हुआ है एज वेल एज, तो ये दोनों को जोड़ भी रहा है, ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ, दोनों सब्जेक्ट्स के साथ एग्री भी कर रहा है सेंटेंस को प्रॉपरली फॉर्म करने में, ठीक है। सो आर यू क्लियर विद द फोर्थ एंड द फिफ्थ रूल? I hope you are clear with the fifth, fourth and the fifth rule of the subject and the verb agreement. So let's now move on with the sixth rule for the subject and the verb agreement. Okay students, so let's move on with the rule number 6. When two or more singular nouns, दो या दो से ज़्यादा जो singular nouns होते हैं या फिर pronouns होते हैं, जिनको कि हम कनेक्ट करते हैं और से या फिर नॉर से, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द चेयर पर्सन, ठीक है, चेयर पर्सन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। CEO हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको हम इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है और से, ठीक है। अप्रूव्स ये हमारा वर्ब है। द प्रपोजल बिफोर प्रोसीडिंग, कोई भी प्रपोजल होता है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी चीज़ हमको करनी होती है, तो बिना हम किसी भी इंसान के अप्रूवल के, जो हाई अथॉरिटी होती है उसके अप्रूवल के बिना हम उस चीज़ को प्रोसीड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी चीज़ की, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल, हमको अगर परमिशन ग्रांट करवानी होती है फ्रॉम द प्रिंसिपल, हमको छुट्टी पे जाना होता है, तो क्या करते हैं? हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं। तो जो हमारी प्रिंसिपल होती हैं या फिर जो और हायर अथॉरिटी होती है हमारी, वो हमारे उस एप्लीकेशन को अप्रूव करती है छुट्टी लेने से पहले, ठीक है। देन मूविंग ऑन विद द सेवेंथ रूल, व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स बोथ अ सिंगुलर एंड द प्लूरल नाउन, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में अगर दोनों हमारा सिंगुलर फॉर्म भी लगा है, प्लूरल फॉर्म भी लगा है, इन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ज्वाइन किया हुआ है किससे? नॉर से या फिर और से, द वर्ब शुड एग्री विद द पार्ट, तब वहाँ पर भी यही रूल लगता है कि वर्ब जो है वो एग्री करता है किसके साथ? द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जिस हिस्से की हम बात करते हैं, दैट इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब, उस हिस्से के साथ, सब्जेक्ट के उस पार्ट के साथ वो एग्री करता है जो कि उस वर्ब के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है टू द वर्ब। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता या नज़दीक होना, पास होना, ठीक है। हम कुछ भी कह सकते हैं, पास भी बोल सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के करीब होती है। फॉर एग्जाम्पल द कमिटी मेंबर्स, चाहे वो कमिटी मेंबर्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, राइट, राइट हमारा वर्ब है, और से हमने इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि कंपाउंड है, नाउन लगे हुए हैं दोनों, एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी सेंटेंस में सब्जेक्ट में कंपाउंड यूज करा है हमने, स्टूडेंट्स है वहाँ पे भी कंपाउंड नाउन यूज करा है, और इन दोनों को हमने ज्वाइन किया है और के साथ, तो यहाँ पे जो वर्ब लगा है वो है राइट, मीन्स ये स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए हम इसे कहेंगे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। देन द एट्थ वन इज नॉन काउंट। जो नॉन काउंट होते हैं, जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते उन वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे कि एजुकेशन। एजुकेशन एक नॉन काउंट नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते, वहाँ पे क्या लगा है? इज़ हमने वर्ब के तौर पे लगाया है, द की टू सक्सेस। हम सब जानते हैं कि अगर हम अच्छे से पढ़ते लिखते हैं, हमको अगर ज्ञान मिलता है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं सफलता की चाबी होती है या कुंजी होती है, ठीक है। आई होप ऑल दिस 8 रूल्स अप टिल नाउ, ऑल दीज 8 रूल्स आर वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ आई विल बी मूविंग ऑन विद द 9th, 10th, 11th and the 12th rule. There are 4 more rules left for you to understand. So let's move on with them as well.
Okay, so let's move on with the 9th rule. In this rule, the words or the phrases, जितने भी वाक्य या फिर वाक्यांश होते हैं, for example, जैसे कि हम यूज़ करते हैं each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, ठीक है, somebody, someone, no one, ये सारे जो होते हैं ये सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं और सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ लगता है. For example, each of the participants was, मतलब हर एक पार्टिसिपेंट की ये इच्छा थी कि उसका जो भी गाना है या फिर डांस है उसको रिकॉर्ड किया जाए. तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब के तरीके से वॉज यूज़ किया है और ये हमेशा से सिंगुलर में ये फ्रेजेस रहते हैं. ठीक है. विद द 10th वन, द रूल इज सम काउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश. बहुत सारे ऐसे काउंटेबल नाउन्स होते हैं इंग्लिश में. ठीक है. जैसे कि अर्निंग्स काउंट कर सकते हैं, गुड्स काउंट कर सकते हैं, ऑड्स दैट इज ऑड नंबर्स उनको काउंट कर सकते हैं, सराउंडिंग्स अपने आसपास के का जो हमारा इलाका होता है, जो इन्वायरमेंट होता है हम उसे काउंट कर सकते हैं. ठीक है. प्रोसीड्स हम कैसे कैसे प्रोसीडिंग्स करते हैं, एक प्रोसीड किया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा. ठीक है. कंटेंट्स जो इंडेक्स होती है हमारी, ठीक है, उसे हम कंटेंट्स के नाम से भी जानते हैं. एंड द वैल्यूएबल्स जो भी हमारी कीमती बेशकीमती चीज़ें होती हैं हम उन सबको काउंट कर सकते हैं, लेकिन उनमें ये तो प्लूरल होते ही हैं और साथ ही साथ इनके साथ प्लूरल वर्ब का भी हम यूज़ करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द अर्निंग्स हमारा प्लूरल है, बहुत सारे पैसे. फॉर दिस क्वार्टर मतलब इस महीने के लिए जो हमको मिला है. एक्सीड हमारा वर्ब है. ठीक है. प्लूरल वर्ब है. एक्सपेक्टेशंस तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ज़्यादा हमें इस बार पैसे मिले हैं. जो हमारी जो कमाई थी वो हमें हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिली थी. तो ये चीज़ जो है अर्निंग्स, इसको हम काउंटेबल नाउन है इंग्लिश में, इसीलिए ये जब प्लूरल में ऑलरेडी है तो इसको भी हम प्लूरल में ही एक्सीड्स नहीं करेंगे, हम एक्सीड ही लेते हैं, वो भी प्लूरल वर्ब फॉर्म ही रहता है. आई होप यू आर वेरी क्लियर विद द 9th and the 10th रूल ऑफ the subject verb agreement. Okay, then let's move on with the last 2 rules for this subject verb agreement, and let's see what they are about to discuss. Okay, so let's move on with the 11th rule of the subject verb agreement. So it says in sentences beginning with there is या there are, अगर कोई से भी सेंटेंस में there is या there are से शुरुआत होती है तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब को फॉलो करता है, क्योंकि जो हमारा वर्ड there है, ठीक है, ये किसी भी तरीके का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. इसी वजह से the verb agrees with what follows the verb. इसी वजह से जो वर्ब है हमारा, ठीक है, वो उसी के साथ ही चलता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज, अब सेंटेंस की शुरुआत ही देयर इज से हुई तो इस जो ऑलरेडी हमारा वर्ब है लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, तो इसके साथ इस वर्ड के साथ ये वर्ब एग्री करता है. ठीक है. देन विद द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द 12th वन, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट इम्प्लाई मोर देन वन पर्सन. ठीक है. हम जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक इंसान से ज़्यादा पे लागू करता है, लेकिन कंसीडर्ड सिंगुलर, लेकिन इनको सिंगुलर ही लिया जाता है और साथ ही साथ इनके सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है. सो लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दोस काउंटेबल नाउन्स जो कि होते हुए प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब को लेते हैं. ग्रुप, टीम, कमिटी, फैमिली, क्लास, ये सारे प्लूरल होते हैं. ग्रुप हर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट होता है, टीम में भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कमिटी में भी गिन सकते हैं, फैमिली में भी और क्लास में भी सेम चीज़ होती है. सो फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप मीट्स एवरी वीक, तो ग्रुप क्या है, द ग्रुप. इसमें हम खास करके अगर फोकस करें ग्रुप के ऊपर तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है भी तो इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट की बात होती है. मीट्स, ये हमारा सिंगुलर
वर्ब हमने लिया हुआ है। तो क्या है, ग्रुप जो है मतलब ग्रुप का हर एक मेंबर जो है वो हर हफ्ते एक दूसरे से मिलता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद ऑल द रूल्स, with the definition parts, all the things that are related to this chapter, subject verb agreement. Okay, so if you have got any of the doubt, you can just send it to me in the comment box or through a message on the YouTube channel. So wishing with this that आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. If you do have any doubt, just please let me know. I'll try my level best to clear out more doubts if I can. And with this, I come to an end of this chapter, subject verb agreement, and wish you all the good luck and bye everyone.